Good morning to everyone. It is my esteemed pleasure to be here today to interview our distinguished Professor Anand Chaudhary sir. I am Aparna Singh, PhD scholar in Ras Shastra and Bhajis Kalpana department at Banaras Hindu University, and I am privileged to take this opportunity to interact with sir today. Thank you so much sir for giving me this chance. Today's discussion is all about millet. As we are aware, the year 2023 has been declared as the International Year of Millet by the United Nations. And we are here to get more insight about the same. Sir, may we proceed? Yeah, please. Thank you, sir. Sir, both the total production and consumption of millet has significantly decreased from the early years following independence, as seen by a comparison of the two time periods. Even though millets are significantly more nutritious than other grain, so sir, what do you think is the main reason for such a decline? Before answering you, Miss Aparna, मैं YouTube असर्टिव आयुर्वेदा के सभी व्यूवर्स को नमस्ते, हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन। और इस इंटरव्यू सीरीज़ में जो हमारे यूजी, पीजी, पीएचडी अपनी अपनी जिज्ञासाओं के साथ आ रहे हैं, उस सीरीज़ में हम आगे बढ़ते हुए आज मिस अपर्णा हैं। मिस अपर्णा ने बताया कि वो पीएचडी स्कॉलर हैं रसशास्त्र भेषज कल्पना विभाग में, बट शी हैज़ वन मोर वेरी स्पेसिफिक इंट्रोडक्शन दैट शी इज़ एमएससी इन होम साइंस फ्रॉम आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी फैजाबाद, एंड her specialization is food and nutrition. Of the 4-year BSc, her specialization on the honor subject was the food and nutrition. Onwards, she did MSc from Banaras Hindu University, and now she opted for research this department of Ras Shastra and the Bheshaj Kalpana. And one more specific thing about Aparna is that she has every opportunity to be enrolled for as a research scholar in her parent department, that is the Department of Home Science in the MMB of the Banaras Hindu University, Mahila Mahavidyalaya, but she opted to be in Ayurveda. Many people questions her decision, even her family member. Why you are leaving your main branch, you are going to the allied branch, but how? Because she was convinced to something having in the field of Ayurveda nutraceutical and the research. Now we have her one co-guide from Department of CFST, Center for Food and Science Technology of the Institute of Agricultural Sciences of the Banaras Hindu University, the gold medalist Dr. Ankita Hooda, and I myself as supervisor, and Dr. Ankita Hooda. This is the 3A, Anand Chaudhary, Ankita Hooda and Aparna Singh. Okay, this 3A will try to contribute something about the 4th A, that is the Ayurveda nutraceutical. Okay, so Aparna question is first, what is the reason of the decline of these production of millets? And what is the reason I just add upsurge of this millet? Learned friends, society is driven by narratives. Society is driven by status symbol. Society is driven by many factors which influence the society, with the social reason, with the economical reason, with the political reason, cultural reason. Many reasons are involved. How society is behaving and how society changed the behavior. So the answer of your question, Aparna, is this is the cultural change in India, specifically the colonial India, the British rules. Because under the British rule, these things were considered as something which is
a cause of poorness, which is opted by the persons who don't have any monetary saturation, or just this is the grain for the poor. And that is the reason why people started having wheat and the varieties of the rice and the many more things, and living this. In my childhood, I have seen the field of my own, that Tango, Madua, Junhari, Bajra, Jwar is we call Bajra in the district of Balia, UP. Hectares of hectares. And the many things were being made by this. But nowadays people are not, nowadays means back 3 years. Nowadays people are again inclined to the agriculture of these millets. This is the thanks to the government for promoting its nutraceutical benefits. So the reason, in my opinion, for the decline of the production is the social and the cultural taboo, that this grain, this small seeded grain, is food of poor people. Yes, next. Okay, sir. Sir, most frequent problem today that most states are dealing with is irrigation. Due to severe water shortage, the production of sugarcane in Maharashtra, rice in Haryana and Punjab, and other crops has decreased. However, compared to the cultivation of rice, millet require less irrigation. Still, the majority of farmers are not eager to grow millet. So, sir, what do you think about this? See, this question is not to a right person. Yes, Pranav, this question of the agriculture and the cultivation and the irrigation facilities are not my domain. But when you are raising this question, then answer is everything is depending on the economy. Farmers grow onion, farmers are growing tomato or anything, many crops. I am giving example of two. To fulfill their social needs, to make them financial solid, stable, for their financial stability. And when this is lacking, they stop the growing such crops which are not giving them return for their livelihood, for their future plans. I have read, मैं पढ़ा करता था जब आपकी इस ग्रुप में था, कि मानसून बहुत अच्छा हुआ है, कंपनी बहुत प्रसन्न है, इस बार टीवी फ्रिज खूब बिकेगा. तो मैं डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाता था एज ए इंटर बीएससी का स्टूडेंट कर. मानसून बहुत अच्छा हुआ है या रबी की फसल बहुत अच्छी हुई है, तो इससे टीवी और फ्रिज और ये सब आइटम्स के, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स की बिक्री का क्या संबंध है. लेकिन आज जब मैं 56 वर्ष का हो चुका हूँ तो मुझे समझ में आता है कि इसका सीधा संबंध है. भाई, एक आपका अर्बन पॉपुलेशन है, वो तो एक स्टेबिलिटी है उसकी इकोनॉमी में, जॉब कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो अपनी चीज़ें उससे रूटीन में परचेस करता रहता है. लेकिन कंपनियों का बिजनेस जो बढ़ता है या घटता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव में रहता है, तो गांव की उपज जैसी होती है उसके ऊपर बाजार डिपेंड करता है. तो ये आप ये समझ लीजिए कि भारत सरकार ने भी बहुत सोच समझ करके इंटरनेशनल मिलेट ईयर यूएनओ में रिजोल्यूशन लाया और इसको 23 को इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया. ऐसे ही नहीं भारत सरकार काम करती है, बहुत दूरगामी परिणाम सोच करके काम करती है. आप देखिए, इंटरनेशनल रिजोल्यूशन आया, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा हर 21 जून को. एक उसका दूसरा पहलू देखिए आप अपर्णा, कि इससे कितनी इंडिया की इकोनॉमी ग्रोथ हुई. योगा का जो हेल्थ बेनिफिट है, स्पेसिफिकली जो पीस, हारमोनी, वेलनेस की बात है, दैट इज़ एट वन सेंटर, अनपैरेलल. बट लुक टू द इकोनॉमिक ग्रोथ टू द कंट्री इंडिया, राइट? द होल सप्लाई,
the demand of the yogacharyas, certified yogacharyas, and all accessories related to the yoga. See their demand. Yoga mat. Now Ministry of Ayush is describing, this is the description of the dimensions of the yoga mat, and this is the standard. Why so? Because in the international yoga propagation, these things are in demand all over globe. And so if there is some problem of export, then government is taking decisions as per the need, right? So in this case, the economy is also booming. What is here in this case of the international millet here? It has two objectives, Aparna. One is the, of course, the benefit of humankind, right? To provide the nutritious food, good food, which is very much useful for the people having some non-communicable diseases like the diabetes or these things, okay, and the lifestyle disorders, or the gluten-free flour, the persons who are gluten tolerant, like that. So this is an alternative. But here is one more agenda, and that agenda is the economy. When International Year of Millets, and when we are singing the song of millets, it's systematic images, it's nutritional benefits all over world, and when we are just beating our drums with very good orchestrated music, that millet is the something which will which will fill all the gap of the nutraceutical, and which is for which world is looking for the common living. Here is economy. So the government of India is, when boosting all these things, so there is some very far-sighted vision of the present government. They did it for yoga, they are doing it for the millets, and the many more things where this country say university teachers are always having a liberty to make some political observations. Just day before yesterday, our Honorable Prime Minister said in Rajasthan that if he will get the third term, the India will be third economy of the globe. So how you can achieve the third place of the third economy of the globe? Here you have to sell your music, here you have to sell your millets, here you have to sell your traditional medicine, here you have to sell your yoga, here we have to sell the many things which are the Indian traditional knowledge. You can't sell the technology of the making of the air fighter jet to the world. You can sell it even when you are purchasing Rafale, or you are purchasing Mirage, or when you are purchasing MiG. They are not giving you the technology so that you can produce total technology. They are giving technology for the some parts, so that you can manufacture and supply to the other country. No, not at all. You are not getting technology. So from where you will boost up your economy? Just by the brain drain or these things. So millet is the part of the vision of the government of India. Really, I appreciate it that India is the highest millet producing country, and they are searching an international market because they visualize that here is a gap between the demand and supply for the people who want to rid of obesity, who want to rid of chronic diabetes, who want to rid of their own some GIT disorders due to all these things which are not harmonizing with their body. So they are in search of some replacement,
and government of India is propagating that replacement, showing that replacement, selling that replacement, that is it is the millets. Yeah, please. Okay, thank you, sir. Sir, my next question is why millets are called as superfood or Shri Anna, and what should be the way forward for the millets? See, Aparna madam, everything is depending on point that how you are presenting yourself. If you are able to make a better presentation of yourself before the board or before the selection committee, you will be selected where you are going to appear. So a good terminology is required. So this Sri Anna is a good terminology for the millets given by the present government and even this budget area. So it's a very attractive. And see one thing, the nomenclature तो बहुत कुछ, हर योजना का एक नॉमेनक्लेचर आ जाता है. सुगम हमारे फार्मास्यूटिकल्स में आया, और भी आप एक्रोनिम्स पर उनके साथ मिला लेते हैं. जैसे कि यहाँ पर चलिए एक अभी हाँ आज हम लोग मिलेट्स की बात कर रहे हैं तो ईट राइट इंडिया मूवमेंट, ईट राइट इंडिया मूवमेंट चल रहा है, फिट इंडिया मूवमेंट, तो ये सब स्लोगन्स दिए जाते हैं. अभी देखिए ना, अभी पूरा देश में एक बहस चल रही है, जितने भी यहाँ पर सेंट्रली ओपोजिशन, बहुत सारे स्टेट में इनके अपने राज्य हैं, वो हर जगह ओपोजिशन में नहीं है. एक नॉमेनक्लेचर आ गया इंडिया, विपक्षी पार्टियों के एक समूह का. अब वो इंडिया नाम पर क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं. बीइंग अवेयर सिटीजन, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, यूनिवर्सिटी टीचर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस academically, administratively, socially, economically, politically, culturally aware citizen of the country. तो विश्वविद्यालय के शिक्षक का ये दायित्व है कि इन 6-7 बिंदुओं पर अपने शोध छात्र छात्राओं और यूजी पीजी के साथ बात करता रहे. तो आप देखिए एक नाम इंडिया रख लिया गया विपक्षी दलों के द्वारा, केंद्र में जिनकी सत्ता नहीं है. तमाम कमेंट्स आ रहे हैं. तो एक श्री अन्न इसी तरीके से नाम दिया गया. अदरवाइज आप शास्त्र में जाइए तो इसका नाम तो क्षुद्र अन्न है, कहीं कहीं तो कुधान्य लिखा हुआ है. लेकिन हमें तो अपना बाजार देखना है, और बाजार कुधान्य से बनेगा या बाजार क्षुद्र अन्न से बनेगा या स्मॉल सीडेड सीरियल कहने से बनेगा. बाजार बनेगा सिर्फ श्री अन्न कहने से. ठीक है ना. तो स्लोगन्स का ज़माना है. क्या कभी पहले किसी सरकार ने ये नारा नहीं दिया था या वुमेन वेलफेयर में काम नहीं किया था? लेकिन आज का नारा फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है. तो नारे पर दुनिया चलती है. तो ये भी एक नारा है श्री अन्न, और जो भी सरकार ने दिया है. और रही बात ये कि सुपर फूड क्यों कहा जाता है, देखिए बहुत दिनों से जो भारत का एक थिंकर ग्रुप है, ये सोचता रहता था कि ऐसा क्या रीज़न है कि ये जो भारत के कल्चरली और फॉरेस्ट में रहने वाले जो हमारे ट्राइब्स हैं, या जो थोड़े से इकोनॉमिकली वीक हैं, वो क्या बोते हैं, क्या खाते हैं, और उनका फिजिकल और मेंटल स्टेमिना कैसा. मेंटल स्टेमिना भी, सिर्फ फिजिकल स्टेमिना नहीं, उनका मेंटल पोटेंसी भी उनकी बहुत अच्छी, उनकी मेंटल पोटेंसी भी बहुत अच्छी होती है. बहुत गहरी नींद सोते हैं, कोई चिंता नहीं होती उनको, है ना. तो उन लोगों ने इस पर देखना शुरू किया कि वो क्या खाते हैं, क्या जड़ी बूटी लेते हैं, कौन सा अन्न खाते हैं, किसकी रोटी खाते हैं, किसकी खिचड़ी खाते हैं. पाया कि ये तो यही सब खाते हैं, मिलेट्स जिनको हम कहते हैं. और फिर धीरे धीरे इसको सुपर फूड कह दिया गया, क्योंकि इसमें जो भी एनालिसिस की जाती है न्यूट्रिएंट्स की परसेंटेज क्वाइट हाई इन कंपैरिजन ऑफ व्हीट, राइस एंड द पल्सेस इन ग्रॉस. सो
millets are called as a superfood. Yes? Are you satisfied? Yes, sir. Okay. Okay, sir. Sir, my next question is, what are the potential economic and social benefit of promoting millet cultivation in both developed and developing regions? Half answer of your this question I have already given. Yes, sir. Yeah. So always it is better to fix the interview. The interviewer is knowing that what questions are being asked, to be asked. But I have this concept that just ask whatever you want to ask. Okay. Repeat your question. Sir, what are the potential economic and social benefit of promoting millet cultivation in both developed and developing regions? When you are saying develop and developing region, it is in the relation of India or it is in the international relation? Sir, both. Both. Diplomatic and so. See, if there is a market, if there is a demand, if there is a purchaser of this Sri Anna superfood millets, farmer will grow. Government is providing technology, government is providing subsidy, government is encouraging, right? Government is going to on the some schemes like buyback. They are encouraging कि government is encouraging farmers आप इस अनाज को बोइए हम खरीदेंगे, तो इससे इकोनॉमिक तो बूस्ट होगी ही होगी, क्योंकि आज जब से ये 6 महीने से कैंपेन चल रही है तब से आप मार्केट में जाके देख लीजिए, हर आउटलेट पे जाके देख लीजिए, चाहे वो नॉर्मल किराना की दुकान हो आपके आस पड़ोस में, या स्पेंसर हो, या बिग बाज़ार हो, या रिलायंस आउटलेट हो, नॉर्मल आटा आपको कितने रुपए किलो मिला है? कभी ख़रीदा है? मेस में खाने वाले तो कभी खरीदते नहीं है। क्या है आटे का भाव? नॉर्मल गेहूं के आटे का भाव क्या है? Sir, I don't know. Sorry. यू डोंट नो, कोई बात नहीं। तो जो नॉर्मल आटा है उससे 2 गुना महंगा ये मिलेट्स के आटा। हाँ जी। अगर आपको 30-35 रुपए किलो का या इससे कम का ही गेहूं का आटा उपलब्ध है, ठीक है, ज्वार का आटा खरीदने जाइए, मक्का का आटा खरीदने जाइए, इससे 1.5 गुना 2 गुना मिलेगा। और अगर आप कहीं स्पेंसर और आउटलेट और रिलायंस में जा रहे हैं और ऑर्गेनिक शब्द जुड़ गया है तो 3 गुना मिलेगा, 100 रुपये का आधा किलो भी मिलेगा। ठीक है, तो ये तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। और ये अलग बात है कि उसमें स्पेंसर कितना कमा रहा है और जो ज्वार उगाया था किसान ट्राइब्स वो कितना कमा रहा है, ये एक अलग इशू है, बहुत इम्पोर्टेंट इशू है। तो इस पर चर्चा करने वाले जो भी हैं लोग और जो कंसर्न हैं वो कर रहे होंगे और करते भी हैं, और उसके उपाय निकलते भी हैं, बिचौलियों को ख़त्म करो और ऐसा देखो ऐसा देखो, लेकिन जब चल रहा है। लेकिन आपको जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, अगर आप ये देखती हैं कि क्या होगा, तो पिछले 6 महीने में, अब मुझे नहीं पता कि आप अभी 5 बिकॉज आप लोग MSc और PhD के स्टूडेंट हैं, और निश्चित रूप से एक दिन आएगा जब आप 7 स्टार्स होटल में जाएंगे आफ्टर योर सक्सेस इन कैरियर। जैसा कि इनका कैरियर तो है ये, इनको मैं हमेशा कहता हूँ कि मुझे आपको नेस्ले और कैडबरी में देखना है, किसी सरकार की नौकरी में नहीं देखना है। फिर भी ये लेक्चरर का फॉर्म भर देती हैं, तो मैं भरने देता हूँ, लेकिन अभी बिना PhD हुए इनको लेक्चरर कौन बनाएगा। लेकिन अभी ये दिल्ली में अपियर हुई थी और ठीक है, इन्होंने अच्छा इंटरव्यू दिया। तो ऑल द व्यूअर्स हु आर लिसनिंग, आज आपका जब तक प्रोडक्ट, आप ये देखिए टूथपेस्ट का मार्केट कितना है, और कोलगेट जब आई इंडिया में तो उसने सब डाबर के जितने प्रोडक्ट्स थे सबका मजाक उड़ाया, लाल गंद मंजन, काला नमक, ये वो। आज क्या आ रहा है? कोलगेट ब्लैक आ रहा है, कोलगेट साल्ट आ रहा है, दंत कांति के भी वेरिएंट्स देख लीजिए कितने हो गए हैं, डाबर के वेरिएंट्स देख लीजिए कितने हो गए, मेसवाक से लेके डाबर बबुल, डाबर नीम। देखिए, ठीक, सोचिए, मार्केट सोचिए, मार्केट
पेप्सोडेंट के देखिए, हाँ पेप्सोडेंट देखिए, मैं हिमालय की बात करना चाह रहा था। हिमालय के वेरिएंट्स देखिए, ये क्या है? ये मार्केट है। क्या समझिए अपर्णा, ये क्या है? मार्केट। ये मार्केट है, इकोनॉमी है। रिच पीपल आर बीइंग मोर रिच। नॉलेज कॉन्सेप्ट इज ऑफ आयुर्वेद, लेकिन आयुर्वेद पढ़ने वाला व्यक्ति, और तुम अभी जैसे कि लेक्चरर बनने को, मैं इसी को बता रहा हूँ कि तुम लेक्चरर बनने को तैयार हो जा रही हो फट से कि मुझे एमएससी होम साइंस में लेक्चरर बन जाना है। अरे मैडम, आपका ऑब्जेक्टिव तो ये होना चाहिए कि आपका कैडबरी और नेस्ले और भी जितनी एमएनसीज हैं उनमें आपको ये श्री अन्न, हाँ श्री अन्न कहा जाए, के प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, जो कि आपकी थीसिस टाइटल हमने दे रखी है। माय डियर व्यूवर्स, इनके थीसिस टाइटल का जो प्रोडक्ट है हमने उसका नाम रखा है आहान ऊर्जा, और वो यूथ के ऊपर है कि ये जो कैंपस में जो यूथ हैं जो हमेशा पिज़्ज़ा बर्गर खा के लुढ़के रहते, लुढ़कना शब्द तो गलत हो गया, लुढ़कना शब्द तो एक दूसरे सेंस में आता है। आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक। मतलब जो पिज़्ज़ा बर्गर खा करके, और वो मैं याद कर लूँ 60 साल के जवान या 16 साल के बूढ़े, केसरी जीवन का जो एडवर्टीजमेंट आता था, तो जो हमारे यंग हैं जो कि ओल्ड की तरह से बिहेव करने लगे हैं, तो यदि उनको ये मिलेट्स खिलाया जाए और मिलेट्स के प्रोडक्ट दिया जाए उन्हीं की पसंद वाली भाषा में, पिज़्ज़ा बर्गर में डाल करके या उनके कुछ बनाया जाए, तो वो क्या महसूस करेंगे। तो अभी मैं जो बात यहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक चली गई, इसीलिए कहते हैं कि प्रोफेसर्स को जब वो अपनी क्लास लेते हैं तो प्रोफेसर प्रोफेस द सब्जेक्ट। तो हम लोगों का ये थोड़ा सा ये ड्रॉबैक है, थोड़ी अच्छी बात भी है कि एक ही साथ हम लोग बहुत सारी बातें चाहते हैं कि ट्रांसफ़र करें। तो बात शुरू हुई थी 7 स्टार से, ठीक, और आगे गई आहान ऊर्जा तक, आपके थीसिस प्रोजेक्ट तक चली गई। अब देखिए आपको काफ़ी सजेशंस मिलेंगे कि आपको क्वेरीज आएंगी कि आप क्या कर रही हैं और आप किस कैंपस में जा रही हैं ज्वार का, मिलेट का पिज़्ज़ा और बर्गर बना करके लोगों को खिलाने। और अब मैं बताऊं तो जब ये हमने आपका 1 साल पहले प्लान किया था, और अभी जब आपने कहा कि नहीं हम मिलेट्स पर सर्च करेंगे, तो जब मैं थोड़ा सा सर्च कर रहा था तो ये देखा कि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मार्केट में आ गई हैं। आप 5 स्टार होटल में चले जाइए, आपको मिलेट सेक्शन अलग मिल रहा है आजकल, और वो उसको खूब बड़ा एडवर्टाइज कर रहे हैं। मिलेट सेक्शन, मिलेट ब्रेकफास्ट, मिलेट लंच, वेरी गुड। लेकिन ये जान लीजिए, जो मिलेट लंच है ना, आपके नॉर्मल लंच से कई गुना महंगा है। अभी थोड़ा बाजार को आने दीजिए, इसका प्रोडक्शन बढ़ने दीजिए। एनी हाउ, अपर्णा, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो हम लोगों ने टॉपिक पकड़ा है, आपने और डॉक्टर अंकिता हुड्डा ने CFS से, अभी उस पर किसी की नज़र नहीं गई है। आपका काम यूनिक होगा, आप उसको करते रहिए, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत विशेष टारगेट एरिया लिया है और बहुत विशेष इस पर अभी सभी लोग जनरलाइज काम कर रहे हैं। हम लोग एक इंडिविजुअलाइज, एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो इकोनॉमी और तो बूस्टी होनी है, और कल्चर तो पूछिए मत कि अब तो स्टेटस सिंबल हो गया है। जैसे आजकल स्टेटस सिंबल अभी है भी कि क्या भाई क्या हो रहा है, हमने अपने घर में एक योगा ट्रेनर रख लिया है, तो ये एक स्टेटस सिंबल है योगा ट्रेनर रखने का। आजकल ड्राइंग रूम में, पहले हम लोगों के, आज के 20 साल पहले तुम्हारे अपने मम्मी पापा से पूछना तो टीवी रखा जाता था ड्राइंग रूम में स्टेटस सिंबल के लिए। अब जो है वो जिम की मशीनें रखी जाती हैं ड्राइंग रूम में स्टेटस सिंबल के लिए। वो उनको क्या कहते हैं, जो कि उसी पर लोग चलते रहते हैं, उसका एक नाम है, मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो लोग ड्राइंग रूम में रखते हैं कि हाँ ये हमारी 1.5 लाख 2 लाख की ये मशीन आई है, अब हम बाहर नहीं जाते हैं, इसी पर हम घर में ही सब अपना काम कर लेते हैं। कभी कभी कुछ नाम मिस हो जाते हैं, तो मुझे उस मशीन का नाम मिस हो रहा है फ्रेंड्स। तो ड्राइंग रूम में स्टेटस सिंबल बदलता रहता है। किसी ज़माने में पेंटिंग्स रखी जाती थी, है ना, तो ये बनता जा रहा है। तो ये जो कल्चरली की जो बात पूछ रही हो ना, तो मिलेट्स इज नाउ स्टेटस सिंबल, राइट। तो इट्स ए वेरी गुड ग्रोथ, इट्स ए वेरी गुड ग्रोथ, इट इज ए वेरी गुड ब्राइट फ्यूचर। क्योंकि इसको लोगों ने, इलाइट वर्ग ने, जो भारत का है, जो पैसा नहीं देखता है, स्टेटस सिंबल देखता है। अरे बहुत लोग हैं भारत में ऐसे, पढ़िए इकोनॉमी, तो जिनको कि पैसा किसी चीज़ के लिए नहीं देखते हैं, वो तो ढूंढ रहे हैं कि पैसा कहाँ खर्च करें।
तो देखिए वो आपस में जब वो सुबह BHU कैंपस में वॉक करते हैं और जो बिजनेसमैन्स हैं BHU के पूरे, और उनके आसपास से कोई गुजरता है, आजकल तो मैं नहीं गुजर रहा हूँ 1.5-2 महीने से, लेकिन जब मैं गुजरता था तो वो मिलेट के ही नाश्ते की बात करते हुए नज़र आते थे। कहा गुरु आज तो ये मंगोली है, वहाँ से आए लो, बड़ा महंगा हो, लेकिन अब वो महंगा बताना ज़रूरी है कि 500 रुपये किलो है। चलिए, तो इकोनॉमी और कल्चर दोनों बहुत समृद्ध है मिलेट का। जी, नेक्स्ट। Okay, sir, my next question is, how can consumer and the general public be encouraged to embrace millet as a nutritious and environmentally friendly food choice? प्रचार, सिंपल प्रचार, और कुछ नहीं। एडवर्टीजमेंट इन द प्रिंट मीडिया, एडवर्टीजमेंट इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, माउथ टू माउथ एडवर्टीजमेंट, एंड द ऑल बाबाओं के समागम में एडवर्टीजमेंट। प्रचार करिए, प्रचार से सब कुछ सही हो जाएगा। और आपको मैं बताऊं तो प्रचार करने में तो हमारी संस्था बहुत ज़्यादा योगदान देती है, आयुष मंत्रालय। तो आयुष मंत्रालय ने जब से मिलेट वर्ष घोषित किया गया है, तो ऐसी कोई संस्था नहीं है आयुष मंत्रालय की जिसने कि इस प्रचार प्रसार कार्यक्रम में भाग न लिया हो। मिलेट कैंटीन इज़ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ दलई, मिलेट फेस्टिवल एट द इटरा जामनगर, 80 स्टॉल और द 40 स्टॉल। अब यादगार कम हो रही है, मुझे कुछ खाना पड़ेगा मेमोरी बढ़ाने की चीज़। तो पता नहीं 40 या 80 स्टॉल थे जिस पे कि मिलेट्स कजिन बनाई गई, खाखरा भावरा भी सब मिलेट्स का बना करके खिलाया गया जामनगर में। वैसे ही हमारे जयपुर में और जितनी भी हमारी आयुष की यूनिट्स हैं, सब मिलेट्स के प्रोडक्ट्स का और खाद्य पदार्थों का प्रचार प्रसार कर रही है। भारत सरकार तो कर ही रही है, अपने कृषि मंत्रालय कर ही रहा है, वुमेन चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट मंत्रालय कर ही रहा है, और ट्विटर जो कि सबसे बड़ा आजकल प्लेटफॉर्म हो गया है। लेकिन आपको पता है ट्विटर की चिड़िया अब जा रही है, वहाँ पर कुछ डार्क एक्स काले रंग का आ रहा है, पता नहीं ऐसे डिसे। कल इंडियन एक्सप्रेस में इसके ऊपर बहुत बड़ा राइटअप निकला था, लेकिन मैं पढ़ नहीं पाया हूँ। मुझे पढ़ना है कि द एंड ऑफ द ब्लू बर्ड, उसके पीछे भी कोई कॉमर्शियल रीज़न है। एलन मस्क साहब उसका ट्विटर का सिंबल ही बदल रहे हैं, चिड़िया से वो एक डार्क में और एक्स ला रहे हैं, यानी। लेकिन मैं आज शाम को उसको पढ़ने की कोशिश करूंगा उस राइटअप को, कि व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द व्हाई दे आर चेंजिंग दिस सिंबल ऑफ द ट्विटर। तो ट्विटर पर देखिए आप, इंटरनेशनल मिलेट ईयर का एक ट्विटर अकाउंट हो गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। वो डेली ही कोई ना कोई खाद्य पदार्थ को डाल करके, और उसी वर्ग में ट्विटर क्या, हमारा गांव के रघुर बाबा देखल है के देखल है ट्विटर। ट्विटर तो वही लाइट वर्क में भाई, अपर मिडिल एंड इलाइट एंड यूथ भी, वो भी अच्छे जो हैं, तो वो लोग ट्विटर पे हैं। तो ट्विटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर हर जगह तो मिलेट ही चल रहा है। तो प्रचार प्रसार तो हो ही रहा है चारों ओर। आपको रोज़ आप याद करिए, आपका व्हाट्सअप रोज़ मैं भरता हूँ सुबह सुबह। आप एज ए माई, मतलब कि माई को लर्नर, वट एवर द थिंग्स आई एम गेटिंग अबाउट द मिलेट्स, और आपका PhD मिलेट्स पर है, और आपका तो मुझे ज़्यादा प्रेशर रहता है मेरे दिमाग में कि ये बच्ची जो है, ये है अपर्णा, अपना मेन ब्रांच छोड़ करके आई है, तो इसको तो अब कैडबरीज और नेस्ले में पहुंचाना ही पड़ेगा। इस तरह से हम तुम्हें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम हो जाओगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप बिल्कुल होंगी। तो सवाल यही है कि आपका व्हाट्सएप हम रोज़ ही भर देते हैं मिलेट से जितनी भी संबंधित आ रही है। तो प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है, लोग इसको परसीव कर रहे हैं, लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन यही खतरे की भी घंटी बज रही है। चलिए देखते हैं आपके प्रश्नों में वो है कि नहीं है, आगे चलते हैं। सर, जैसा कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री के साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ आयुष भी लगातार प्रयास कर रही है मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए, तो मैं आपसे जानना चाहती थी, डज मिलेट हैव एनी कनेक्शन टू आयुर्वेद? मैडम, बेसिकली योर क्वेश्चन इज रॉन्ग। डोंट बी डिसअपॉइंटेड because you are from the MSc background, na? So far you are raising this question. You are MSc Home Science, and you know, in India people think they are smart because they are not knowing Ayurveda back 1 decade. See,
millet has no existence apart from Ayurveda. Your question is, does millet have any connection with Ayurveda? My answer is, millet has no existence apart from Ayurveda. I repeat, millet has no existence apart from Ayurveda. What is Ayurveda in India? Ayurveda is everything in Indian civilization. What you are eating and how you are living, that is Ayurveda. Whether you call it Ayurveda or don't call it Ayurveda. So without, it's a question, good question, and I am answering you legally. The Ayurvedic Pharmacopoeia of India is a government publication of the Ministry of Ayush. We have published, government has published more than 450 plants and their details about which are quoted in Ayurveda. So as in the beginning I said कि kudhanya, chudradhanya, so it is very much there. If you go to the Ayurvedic Pharmacopoeia of India, volume 5, if you go to the Ayurvedic Pharmacopoeia of India, volume 6, there are details of millets in the name of chudradhanya and jwar, priyangu, and many more things. My PG scholar compared all these things, and one paper published from the JS College of Ayurveda from the department of Swasthvrit and Yoga. Back 21. This international millet year is the 23. Back 21 they have published a good paper on the Ayurveda, and I suggested Dr. Preeti Tamta to hand over to transfer that paper to you also. They have given very systematic survey of Ayurvedic literature where these millets are given, and not only this, I said you that page number 101 to 117 in the API volume 5 and page number 185 in the API volume 6, these kodo millets, ragi millets are quoted. So Ayurveda has published it in a very legality way. Ayurvedic Pharmacopoeia of India is just our legal book. It is a pharmacopoeia. So Ayurveda has done good job, and here if you see, good names are there: kodo millets, gawad millets, Pangoi, China, and even that paper of the JSS, they are talking about the almost ras ar kasay, madhur, vipak is katu, vir is sweet, gun is laghu ruksh, karm is the lekhan, vrishya klet sodhan. And if you want something more, then go to the site of the CCRS, and the CCRS is also have given a survey report about this. The API are the publications of the CCRS and with the nowadays PCISMH, but the volume 5-6 is from the PLIM, the initial body, and then here is the Parvidat, and if you see the things given for the Congo or the Priyangu, the Sangrahi, Bringhar, Sodhan, and fracture healing in the good, difficult for digestion, so the good for the obesity and diabetes. It is the Vrishya in nature. So what I wish to say that if you see the site of the CCRS and the paper of the JSS Ayurveda Mysore, I congratulate the authors that of course millet is integral part of Ayurveda. Why you are asking the connection with the Ayurveda? Millets are the integral part of Ayurveda. Yes, please. ओके, थैंक यू सो मच सर. सर, जैसा कि मिलेट्स आजकल बहुत ट्रेंड में चल रहा है और ऐसा माना गया है कि मिलेट्स में ना सिर्फ न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी होती हैं बल्कि फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टी भी काफ़ी अच्छी होती हैं. ये बहुत सारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ेस को रोकने में मदद करता है. तो मैं आपसे जानना चाहती थी कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कैन बी प्रिवेंटेड विद द यूज़ ऑफ एनी मिलेट, और वी शुड यूज़ एनी स्पेसिफिक मिलेट फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज़. People say in English $1 million question, but I shall say it is the $1 billion question. मैंने अभी थोड़ी देर पहले 10 मिनट पहले बोला था कि
एक ये जो सार्वभौमिक ओपिनियन बन जाती है ना, हाँ जी। ये खाओ तो बड़ा अच्छा है। सब लोग लौकी का रस पीने लगे थे, इतना लौकी का रस पिए कि उसका नुकसान हो गया। आज के 10 साल पहले सब लोग कोविड पीरियड में गिलोय का काढ़ा इतना पिए और इतना ज़्यादा पिए, इसका डोज इतना पिए कि उसका नुकसान हो गया। तो वही हाल मुझे डर लगता है कि आई एम अफ्रेड कि द सेम मे बी विद द मिलेट्स। Millet is not answer of every disease and for every person. Millet is answer of some diseases for some people. It is not for the every diseases. If that disease in let me frame the sentence. Millet is not a solution for a disease which is which is occurring in every age group of the life or every person of the society, and there is nothing like that this millet is applicable from pediatric to geriatrics and from poor economic to higher economic class elite. This is not like from mass to class. Here is something which we know prakriti, which we know vyadhi vinishchay, which we say dos dusi samorchana. तो एंड देन वी वर्क ऑन द संप्राप्ति विक्टर। तो मिलेट का भी हमें ऐसे ही काम करना पड़ेगा और अदरवाइज हम काम नहीं कर पाएंगे। कोई भी चीज़ जनरलाइज नहीं होती है। अगर आप मिलेट्स की बात करते हैं, आप अपने घर में अपनी रिश्तेदारी में देखिए, कुछ लोग ज़रूर कहते होंगे कि हमको ये वाली सब्ज़ी सूट नहीं करती है, बाकी घर को सब कोई को सूट करती है। कुछ लोग चना की सब्ज़ी खा लेंगे तो उनका पेट फूल जाएगा, और कुछ लोग चने की सब्ज़ी रोज़ खाएंगे। कुछ लोग छोला खा लेंगे तो उनको परेशानी हो जाएगी। कुछ लोग जो है करेला छूते नहीं होंगे, कुछ लोग बहुत अच्छे से करेला खाते हैं, है ना। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमको तो गेहूँ की रोटी से अब दिक्कत हो रही है, हम थोड़ा सा उसमें जौ बाजरा मिलवा रहे हैं, और उनको डायबिटीज़ नहीं है। कुछ लोग दूध कितना पीते हैं, फिर कुछ लोग दूध बिल्कुल नहीं पीते हैं। कुछ लोग दूध पर लगी हुई मलाई खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं। कुछ लोगों को पूरी दही चाहिए, कुछ लोगों को बिना मिलाई हुई दही छाछ नहीं चाहिए। ये क्यों? यहाँ कोई भी जनरलाइज चीज़ नहीं है। हमारे सिस्टम में, जिसको कि हम आयुर्वेद करते हैं और जिसको भारतीय संस्कृति कहते हैं, हमारे यहाँ खान पान की व्यवस्था में भी बड़ा अंतर दिया गया है। किस अवस्था में, किस व्याधि में क्या खाना है, क्या पथ्य है, क्या अपथ्य है। तो मिलेट भी सर्वग्राही नहीं है। मिलेट भी यूनिवर्सल डोज नहीं है कि बस जिसको भी हुआ एक मिलेट की कैप्सूल उसके मुंह में डाली, ठीक, तुम बिल्कुल फिट हो गए हो, चलो तुमने मिलेट खा लिया। ऐसा नहीं होना है अपर्णा, ठीक है ना। तो यहाँ आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, कम्युनिकेबल डिजीज़ हो, और इसके लिए देखिए अभी सितंबर महीना आ रहा है ना। क्या होता है सितंबर महीने में? सर पोषण माह। पोषण माह। तो पोषण माह के लिए माय लर्नेड व्यूअर्स, व्हाट वी हैव प्लान्ड, पूरे पोषण माह में मैं FSSAI पे ही रहूँगा इस इंटरव्यू सीरीज़ में। फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया और आयुर्वेदिक आहार, 4 इंटरव्यूज़ होंगे सितंबर में। हमारा स्लॉट तो अगस्त तक का बुक हो गया है। सितंबर में भी हमारे स्कॉलर्स ने सब अपने चॉइस से सब बुक करा लिया है, जिसमें UG के बच्चे भी शामिल हैं, और उनसे ही मैं सबसे ज़्यादा डर रहा हूँ। लेकिन ठीक है, जब ओखल में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। जो पढ़ेगा देखूँगा कि वो क्या पूछते हैं, और मैं कितना उत्तर पब्लिकली दे पाता हूँ कि नहीं दे पाता हूँ। उत्तर तो मैं दे सकता हूँ, मगर ऑन कैमरा दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा, प्रश्न ये है खाली। तो चलिए, तो सितंबर में हम आपसे बात करेंगे मित्रों, हम लोग और हमारी टीम आपसे बात करेगी। मैं अक्सर आप लोगों को 1-2 बार बोला था कि कुछ लोग मेरे से पूछे कि कैमरे के पीछे कौन रहता है। तो कैमरे के पीछे यही प्रोड्यूसर मैडम अपर्णा रहती हैं, जो आज कैमरे के आगे हैं। ये पिछले 1 वर्ष से सारी वीडियो प्रोडक्शन यही कर रही हैं, और ये आयुर्वेद को सुन करके इनका ज्ञान बहुत अच्छा होता चला जा रहा है। हमको तो ये लगता है कहीं ये MD आयुर्वेद रसायन वर्सेस कल्पना की इनको ऑनरेरी डिग्री न देनी पड़ जाए कि इन्होंने इतना सुन लिया है इसके बारे में। तो हम फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के
जितने भी इश्यूज हैं पोषण से संबंधित, और माय फ्रेंड्स स्पेसिफिकली हम लोग बात करेंगे पिंक बुक के साथ डॉक्टर प्रीति टमटाई हूँ आपके सामने, फिर जिनको कि अभी आपने मतलब कि हाँ 1.5 दिन में 500 की व्यूवरशिप दी। और फिर हम लोग बात करेंगे ऑरेंज बुक की, फिर हम लोग बात करेंगे पर्पल बुक की। और जो आपने अभी पूछा अपर्णा मैडम कि किसी विशिष्ट व्याधि के लिए कोई विशिष्ट मिलेट, तो उसके लिए जब हम लोग सितंबर माह में पर्पल बुक पे बात करेंगे, जो कि डाइट एज पर डिजीज़ दी हुई है, उस बातचीत के दौरान एट दैट टाइम व्हेन वी विल इंटरेक्ट, आई डोंट नो, आप ही तो अलॉट करती हैं, आप देखें आप किसको अलॉट करती हैं उस टाइटल को। तो आप उस पर्पल बुक वाला जिस दिन सेशन चलेगा, उस दिन आपका ये जो आपका आज का प्रश्न है कि क्या किसी विशेष डिजीज़ में कोई विशेष श्री अन्न दिया जा सकता है, यहाँ तो देखिए जो भी हमारे पास इस समय लिटरेचर उपलब्ध है उसकी फलश्रुति जो है वो दोष के आधार पर दी हुई है। जैसे कि वातज दिया हुआ है, या कहीं कहीं सिम्टोमेटिक है, फार्माकोलॉजिकल भी है, क्लेदनाशक दिया हुआ है, ठीक है ना। अब ये जहाँ पर चूँकि इनका लघु रुक्ष गुण की बात हो रही है, तो इनको कहा जा रहा है कि भाई ये पित्त सामक हो सकते हैं, कफत सामक हो सकते हैं, लेकिन वात वृद्धि करेंगे। तो ये सब जो आपका प्रश्न आता है, इसको हम लोग जब पर्पल बुक डिस्कस करेंगे सितंबर के महीने में, आप देखें आप किसको अलॉट करती हैं, तो उस समय फिर इसको विस्तार से लेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा इसमें हमको वी हैव टू टेक हेल्प ऑफ द रिसेंट लिटरेचर टू, कि इफ़ वी हैव टू एंड इट इज़ अवेलेबल, जस्ट वी हैव टू सर्च कि इन द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम विच मिलेट विल बी helpful, for the respiratory system which millet will be helpful, for a patient of diabetes which millet will be helpful. These things are available for the patient of obesity, even for the some mental area also. These things are available. These are in my knowledge, but I am keeping it for the as the time is being passed for the next session, maybe in September, correlated with the purple book of the Food Safety Authority of India. So 4 Sunday will be there in September at least. The 1 Sunday will be for pink book, 1 Sunday will be for orange book, 1 Sunday will be for the purple book, and the final Sunday will be for the Ayurvedic आहार. बहुत सारे मेरे मित्र ने जयपुर से लेकर के वहाँ पर हमारे बहुत योग्य मित्र हैं, काशीनाथ जी, डॉक्टर काशीनाथ जी, योगाचार्य काशीनाथ जी, वैद्य काशीनाथ जी, वो बार बार हमको कह रहे हैं कि सर आयुर्वेदिक आहार पे उनकी कुछ शंकाएं हैं। और भी लोगों ने कहा कि आयुर्वेदिक आहार पे कुछ चर्चा हो जाए, तो हमने कहा आयुर्वेदिक आहार पर चाय पे चर्चा ज़रूर होगी, और मन की बात ही नहीं दिल की बात भी होगी, लेकिन सितंबर महीने में होगी और लास्ट संडे ऑफ सितंबर होगी, राइट। और कोई प्रश्न आपका? हाँ जी सर। हाँ पूछिए। सर, every time millet intake has been discussed, we have heard about its advantages. Sir, I want to know that does millet consuming have any side effects or drawbacks? Of course it has side effects. Okay. It is contraindicated. As I said, it is not good for the every time for the every person. Right? अब just if you ask me for some examples where the millets are should not be given, so it is given कि if a person is suffering from the Vatic disorder, he should avoid the millets because the properties of the millets are not matching with the for the purpose of the Vat saman. जैसे कि एक जनरलाइज स्टेटमेंट में दूं तो जितने भी लोगों को वातिक वेदना से पेन हो रहा है उनको मिलेट्स का उपयोग बहुत संभल के करना चाहिए, क्योंकि उससे तो और ज़्यादा रुचिता बढ़ेगी और उससे और ज़्यादा दर्द बढ़ेगा, वात का और ज़्यादा वहाँ पर वातिक प्रकोप होगा। तो मैं इसको ही इशारा कर रहा हूँ। आधे इंटरेक्शन में मैं यही आपसे मिस अपर्णा कहने की कोशिश कर रहा हूँ बार बार कि अपर्णा जी इसको
मिलेट को भी लौकी मत बनाना है, लौकी ना बनाए समाज, मिलेट को भी गिलोय ना बना दे, मिलेट को भी अरे जैसे आता है ना कि गंगा मैया में तुमको चुनरी चढ़ाई वो, तो जितनी पीली साड़ियाँ थी मार्केट की सूती सब खत्म हो जाती हैं एक हफ्ते में जब प्रवाह चलता है। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि इसके पीछे की इकोनॉमी क्या होता है। जब सूरत का स्टॉक भर जाता है, सूती साड़ी नहीं बिक रही है और भी पीले रंग की नहीं बिक रही है, तो एक मोशन चलता है, एक पोस्ट कार्ड किसी के यहाँ आता है, लिखा जाता है उस पोस्ट कार्ड पे कि उसको स्वप्न आया कि गंगा जी को, और वो भी भाई के हाथ से साड़ी लेनी है। थोड़ा सा इसको समाज में ये भी नहीं कि पति साड़ी खरीद के दे दे, भाई के यहाँ से साड़ी मंगानी है। तो भाई के यहाँ से साड़ी, भाई आता है, वाह रे भारतीय जनता सलाम है तुझको, भाई आता है, वो पीली साड़ी लाता है, सूती साड़ी चाहिए उसको, उसकी बहन फिर गंगा जी को चढ़ाती है पीले रंग में, और 15 दिन में सूरत का पूरा स्टॉक सूती साड़ियों का खाली। ठीक है, यस सर। बात समझ में आई। यहाँ क्या है, इकोनॉमी। अभी मार्क स्पेंसर चल रहा है, MS स्पेंसर, ठीक है, 60% ऑफ, ठीक, जी। अभी 2-3 दिन पहले। जी। तो जो चीज़ किसी ने भी, मान लीजिए कि हम ही ने दिल्ली एयरपोर्ट पर खरीदी थी फरवरी में 3,500 रुपये में, वही चीज़ सेम अब मिल रही है 1,500 रुपये में। तो इस इकोनॉमी को समझना पड़ेगा ना कि ये इकोनॉमी क्या है। और दूसरा आपको दें, 60% ऑफ, ब्लैक कलर में वही चीज़ मिल रही है 790 रुपये की, मगर ब्रॉन्ज कलर में वही सेम ब्रांड, सेम साइट, सेम पेज, वही चीज़ आपको 1800 में दे रहा है, 1899 की। ब्लैक कलर का भर गया है पूरा, ब्लैक कलर बिक ही नहीं रहा है, उस पर ला दिए 790, 60% ऑफ कर दिए, 50% ऑफ कर दिए। लेकिन जो कलर मार्केट में चल रहा है उस पर 1 रुपये का ऑफ नहीं है। तो यही बिजनेस है, और यही बिजनेस मिलेट के साथ भी होगा, और मिलेट के साथ हो रहा है। ठीक, इसको लोग अभी सेल करेंगे, हर चीज़ के साथ ये बिजनेस होता है। डोलो 650 कितनी बिकी, अब उसके ऊपर कितने टैक्सेस लग रहे हैं, आप अवेयर नहीं होंगे शायद, या आप किसी भी मेडिकल वाले फील्ड आदमी से पूछे कि डोलो 650 का क्या हाल है आजकल, और कितने की इसने टैक्स चोरी की थी, और कितने करोड़ रुपए में क्या हुआ। जितनी भी कोविड में दवाएं थी जो कभी नहीं चल रही थी, एलोपैथी, मेरे के मित्र मुझे स्वीकार करते हैं, वो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे, लेकिन जो भी दवाएं थी स्टॉक में भरी पड़ी थी सब निकल गई कोविड के दौरान, ढूंढे नहीं मिल रही थी कोई भी। तो ये बिजनेस है, ये ऐसा ह्यूमन सोसाइटी है ना, जो आदमी मर रहा होता है उसमें भी बिजनेस ढूंढता है। इकोनॉमी हर जगह है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सुनी हो ना इसको आप जी। हाँ। तो ये मिलेट भी, जब भारत सरकार का उद्देश्य भी इकोनॉमिकल है, भारत सरकार भी चैरिटी नहीं कर रही है, उसने जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर घोषित किया है उसको डॉलर्स चाहिए, उसको एक्सपोर्ट करना है अपने मिलेट का। तो अभी तो यही कह रही है ना कि सब कुछ सबके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसा है नहीं। यहाँ वर्ड ऑफ कॉशन की ज़रूरत है। एक हिंदी में शब्द है भेड़िया धसान की तरह से मिलेट नहीं खाने चलना है, भेड़ों के झुंड की तरह से। आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए व्यूअर्स प्लीज़, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाइए, अपनी प्रकृति के हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से मिलेट्स का चयन कराइए उससे, और उन मिलेट्स का प्रयोग करिए और स्वस्थ होइए। और कोई? नो सर, पूछिए। नो सर, थैंक यू so much sir. अच्छा। Thank you sir for enlightening us with abundant knowledge about millet. I'm pretty sure all of us would put this to the best of use. And I'm glad as how much millet are related and used in Ayurveda, and hoping that more research and development in this field happen to benefit the human race. Thank you so much sir for your time. I'm grateful to have this conversation with you, and I thank everyone for providing me such an amazing opportunity. Once again, thank you very much. थैंक यू अपर्णा। अब मैं यहीं पर एक बात और कहना चाहता हूँ अपने व्यूवर से, कभी भी हवा के साथ बहिए, सब हमेशा हवा के साथ बहिए, लेकिन होशो हवास में बहिए।
होशो हवास में चलिए। अभी बस 1.5-2 महीने पहले की बात है, माननीय प्रोफेसर संजीव शर्मा जी का कुलपति NIDU जयपुर का आदेश आया कि आप हमारे जर्नल ऑफ आयुर्वेदा के लिए एक एडिटोरियल लिखिए। मैंने बहुत बहुत उनको धन्यवाद किया कि ये तो बहुत बड़ा आप सम्मान मुझे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम पूरा आकलन करके ही आपको दे रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या लिखेंगे, एडिटोरियल है, एक सीधी सी बात है। उन्होंने कहा कि क्या आप मिलेट लिखेंगे? मैंने कहा नहीं सर, मिलेट पर तो दुनिया जा रही है और मिलेट पर एक नया इशू भी आने वाला है, उसकी तैयारी चल रही है JDRS की, होना चाहिए, आना चाहिए। लेकिन तब मैंने कुछ दूसरा लिखा और मैंने कहा कि मैं कल सुबह आपसे अप्रूव कराऊंगा टाइटल, तब उसको लिखूंगा। तो उन्होंने कहा कि अरे क्या आपको अप्रूव कराना है, आपको जो मन करे आपको क्या अप्रूव। मैंने कहा नहीं सर, प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए। मैं एक नया, आपने मिलेट्स कहा, मैं क्षमा चाहता हूँ कि उसको मैं सोचता हूँ कि मिलेट्स के ऊपर बहुत बात हो चुकी है। मैं थोड़ा दूसरे चीज़ों की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूँ आपके जर्नल के माध्यम से आपके पाठकों को। तो मैंने उनको फिर सवेरे लिखा कि मैं लिखना चाहता हूँ कि लॉज विच शुड बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंप्लाइड फॉर द ग्लोबल प्रोपोगेशन ऑफ आयुर्वेदा। उन्होंने हैप्पीली इसको एकॉर्ड किया और फिर हमने उसी को लिखा और वो आ भी चुका है, इशू ऑनलाइन अवेलेबल है। आपके पास समय हो तो आप उस एडिटोरियल को पढ़िए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मिलेट्स बहुत अच्छी चीज़ है और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में हमको इसको बहुत अच्छा कैंपेन करना है। लेकिन सावधान मित्रों, जैसे कि पेंडेमिक में हम लोगों ने गिलोय को किया और कुछ लोगों ने स्वयं अपनी अज्ञानता से इसका दुरुपयोग किया, बदनाम आयुर्वेद हुआ बड़े हद तक। तो और फिर हम लोगों को उसका रिबटल जारी करना पड़ता है। अभी देखिए सतारा में क्या हुआ, आयुर्वेदिक काढ़ा पीने से वो मरा, हेडिंग्स ऐसी बना दी जाती हैं। तो मिलेट के बारे में भी, और जब मिलेट के बारे में भी क्या सावधानी है वो हमें जनता को बताना होगा। और जब हम जनता को बताने में सक्षम होंगे, और मैं अपर्णा का बड़ा ही साधुवाद करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इतने अच्छे प्रश्न पूछे और इनको शुभकामना भी देता हूँ कि इनका इतना बड़ा निर्णय कि अपना इन्होंने PhD फ्रॉम हर होम डिपार्टमेंट ऑफ द बनारस यूनिवर्सिटी छोड़ करके हमारे साथ आई। तो वो इस डिसीजन पर इनको पछतावा न हो 2 साल के बाद या 20 साल के बाद, इसका भी हम आयुर्वेदज्ञों को और मुझे तो एज ए सुपरवाइज़र ध्यान रखना ही है, और डॉक्टर अंकिता हुड्डा भी रखेंगी। तो हमें कुछ अच्छा काम करना है और अच्छा काम करके ही इसके बारे में, मिलेट्स के बारे में तथ्य मैं सच्चा झूठा भी नहीं कर रहा हूँ, तथ्य कि किस प्रकृति और किस व्याधि की अवस्था में ये लाभदायक है और किस अवस्था में यह लाभदायक नहीं है, ये हमें जनता को बचाना होगा। मैं समझता हूँ कि JDRS का जो इशू आ रहा है, और अगर मेरी बात किसी तरीके से वहाँ के एडिटर साहब लोगों तक पहुँचे CCRS के, तो ज़रा ये जो लेख व आलेख उनके यहाँ पहुँच रहे होंगे उसमें वो इसको बैलेंस बनाएंगे कि बस खाली बेनिफिशियल ही नहीं डाल देंगे, कुछ उनको भी ज़रूर जगह देंगे जो कि थोड़ा अदरवाइज रिपोर्टिंग है। इन्हीं के साथ अपर्णा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, स्वागत, हार्दिक अभिनंदन, अभिवादन। अगले रविवार को किसी एक अलग छात्र समूह के व्यक्ति के साथ अलग मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद, आभार, साधुवाद। थैंक यू।